Hello, dear students. Myself Dharmendra Patel. I welcome to all students in live Pathshala. Today we will discuss about the solution. This is the class 12th chemistry's first chapter. What is solution? We know we are surrounded everywhere with the help of different types of substances, mixtures, compounds, and solution in our atmosphere. So we will continue the chapter, the solution. What is the solution and what is the composition of this solution? First of all, we understand some basic concepts of solutions. What is introduction? We know that matter may exist in any form. It may be solids, liquid, or gaseous states. Liquids and gases are also in fluid state. It means due to their ability, it can flow. It means solutions are in three states. It may be solid solution. Second is it may be in liquid solution, and also the solution may be in gaseous form. So it is known as gaseous solution. Gaseous solution. First of all, dear students, we know about the solutions in previous classes. Our teachers introduced us what is solution. Solution is the homogeneous mixture of two or more pure substances. हम लोगों को हमारे अध्यापकों ने ये बताया है कि सॉल्यूशन क्या होता है. इट मीन्स कि जो इसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर homogeneous mixture. It means homogeneous, it means the structure of the solution. Yeah, you can say the mixture which forms a like structure. Means homogeneous mixture is also known as solution. यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं प्योर फॉर्म में, जब उनको मिक्स किया जाता है एज अ मिक्सचर फॉर्म, दे क्रिएट अ सिंगल स्ट्रक्चर. इट मीन्स यू कांट सी द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर in the mixture form. Suppose that we have a mixture of sugar and water. Suppose that हमारे पास एक मिक्सचर है शुगर और वाटर का. तो इसमें क्या है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं शुगर एंड वाटर, ये एक दूसरे के साथ कहते हैं वेल फॉर्म में मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करते हैं. तो
In this mixture we can't see the sugar particles and the water particles in the mixture. This is known as solution. It means the homogeneous mixture is also known as the true solution. अगर हम ये कहें तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी यानी मिक्सचर फॉर्म में जो भी आपके कंपोनेंट्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जो हमारे सब्सटेंसेस हैं जो प्योर फॉर्म में हैं वो फॉर्म कर लेते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम बात करें तो इन आवर टॉपिक्स इन आवर चैप्टर वी विल स्टडी about the solution in the different manners, yeah, how many types of mixture, how many types of solutions are created in our surroundings. So what is the definition? Finally we can say that the definition of the solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. Pure substances. Substances is known as a solution. माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या कहती है सॉल्यूशन की कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है टू और मोर सब्सटेंसेस को जब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो वह जो मिक्सचर हमको मिलता है, when we obtain such type of mixtures in which we can't see the components which are mixed in the mixture is known as the solution. We also known as about other type of mixture which is known as heterogeneous mixture. In that type of mixture we can see different components or different substances are mixed in that mixture, that is known as heterogeneous mixture. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि आप जितने भी कंपोनेंट यूज करते हो, जितने भी सब्सटेंसेस आप यूज करते हो वो आप इजीली देख सकते हो। सपोज दैट अब आप अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट वी हैव two beakers. In first beaker we add some water and add the sugar particles. Water plus
शुगर। हमने एक बीकर में शुगर और वाटर को ले लिया, और हम लोग हमेशा ये कहते हैं ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, वी विल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन नेक्स्ट टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, वाटर और शुगर को बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आप देखते हो कि हमारे पास ये जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से वेल मिक्स हो जाते हैं कि वी कांट सी द शुगर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट इन होल वाटर। तो वाटर में जो शुगर पार्टिकल्स हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं। इट मीन्स इन द सॉल्यूशन इट फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इन द मिक्सचर। इसमें क्या करता है, ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, और ये कहा जा सकता है कि अ सिंगल फेस, यानी अ सिंगल फेस क्रिएट होता है, दैट इज वन फेज मिक्सचर। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस को लेते हैं और उसको वेल मिक्स करने के बाद अगर हमारे पास पूरे मिक्सचर का जो फेज होता है, यानी जो उसका दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है बाहर से, यानी किसी भी स्टेट में हो, अगर वह केवल एक फेज बनाता है, सिंगल फेज बनाता है, तो इट मीन्स इट इज अ solution. In the other beaker we take some water, some oil and some particles of sand. इस बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ऑयल ले लिया और सैंड ले लिया। अब इसमें भी अदर सब्सटेंसेस हम लिया है। अगर इन सब्सटेंसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, वेल मिक्स फॉर्म में क्रिएट कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम्स you can see there are different layers of the substances in the particular mixture. It means what you can observe in this type of mixture, you can see the oil substances or petroleum substances are floating the top level of the mixture. आपको यहां पर ऑयल दिखाई देगा, बीच में जो पोर्शन होगा वहां पर आपको वाटर दिखाई देगा, और इन द लास्ट that is in the bottom of the beaker you can see the particles of sand. इसका मतलब है कि आपने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया था और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया, लेकिन आपने देखा कि इस सॉल्यूशन में आपको जो फेज है या जो सब्सटेंसेस या मिक्सचर का जो यू कैन से स्ट्रक्चर है वह सिंगल फेज का होता है। यानी ये आपको सिंगल फेज स्ट्रक्चर देता है, और इसमें क्या है, आपको डिफरेंट फेज देखने को मिलते हैं। यानी यू कैन से इन द केस ऑफ अदर मिक्सचर विच इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, you can see the different structures of the different substances which are mixed in the mixture. So this mixture is known as heterogeneous mixture.
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये आपका क्या बन रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा है होमोजीनियस मिक्सचर है, एक्चुअल में यही हमारा जो है क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज सॉल्यूशन। और इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, characteristics of solution or the properties of solution, in which manners, या कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं by which we can identify the solutions, this is a particular solution। उसके प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यही हमारा सॉल्यूशन है। तो उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन जो है केवल वन फेज या सिंगल फेज क्रिएट करता है। तो यू कैन से अ सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज structure only। It means, my dear students, the first property and the important properties of the solution is that a solution is a single phase structure। यानी ये जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या है कि जब हम जितने भी सब्सटेंसेस हमने लिया है, अगर वो पर्टिकुलरली वेल मिक्सेबल पार्टिकल्स हैं या मिक्सेबल कहते हैं, वेल मिक्सेबल सब्सटेंसेस हैं, और वो अच्छी तरह से घुल करके केवल एक सिंगल फेज क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन है। यानी यू कैन सी अ सॉल्यूशन is a single phase structure only। What is the second property? Second property is all the non-reacting gases mix together and form a homogeneous solution। यानी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जितने भी गैसेज हैं, यानी all types of gases in our circumstances और in our surroundings, अगर वो नॉन रिएक्टिंग है, अगर उनको हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो वह भी एक सिंगल फेज क्रिएट करते हैं। तो इट मीन्स ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेज सॉरी all the non reacting gases are mixed is
also form a homogeneous mixture मीन्स ये भी क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी जितने भी हमारे पास गैसेज हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर मिक्सड इन ऑल इज ऑल्सो नो, कहते हैं फॉर्म अ homogeneous mixture which is known as solution. Third property is we can't see individual substances in the mixture। यानी जो हमने मिक्सचर क्रिएट किया है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, उस सॉल्यूशन में जितने भी हमने सब्सटेंसेस मिलाए हैं, वी कांट सी इंडिविजुअल सब्सटेंस इन द मिक्सचर, उसमें हम किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है कि दे आर वेल मिक्सड इन द मिक्सचर। This is the third property. Next property, the composition of solution may be changed within certain limits. Next, प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, the composition of the solution may be changed within certain limits. The composition of the solution may be changed in certain limits. It means कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन के कंपोजिशन हैं या जिन सब्सटेंसेस को हमने उस मिक्सचर में, जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करता है, उस मिक्सचर में हमने जो भी सब्सटेंसेस मिलाए हैं उनके कंपोजिशन को हम एक सर्टेन लिमिट तक चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमने सब्सटेंसेस लिया है तो सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम वेरी कर सकते हैं, यानी उनको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आफ्टर द सर्टेन लिमिट या ओवर द सर्टेन लिमिट्स यू कांट सी अ प्रॉपर सॉल्यूशन। यानी जब हम लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास जो भी मिक्सचर मिलेगा वह एक प्रॉपर लिमिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, द सॉल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है वो वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो उसके सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज है। यानी यू कैन से द प्रॉपर्टीज of solution
is the properties sorry the properties of the solution is the properties of its components. इट मीन्स कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी वही होगी जो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी। हम कह सकते हैं कि जो भी हमने सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए या होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए जितने भी हमने सब्सटेंसेस इसमें मिलाए हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो ओवरऑल उसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, what is the next characteristics and sorry dear students for interruption. Next property is the substances present in smaller amount is known as solute and the particles or the substances present in the solution in big amount is known as solvent। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप ये कह सकते हो कि इट हैज mainly two components. A solution has two components that is first is solvent and second is solute. Every solution has two components. एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा। अब व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट? इन विच मैनर वी कैन आइडेंटिफाई which component is known as solvent and which component is known as solute? We learn it। तो सॉल्वेंट क्या है कि जब भी हम होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो जो भी सब्सटेंस मैक्सिमम क्वांटिटी में लिया जाए, जो सपोज दैट हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है या होमोजीनियस मिक्सचर किया है, तो इस 100 ml में जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अधिक होगी वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसकी क्वांटिटी कंपैरेबल वेरी लेस अमाउंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट दिस इज अ कंपोनेंट of the solution present in big or greater
quantity in the solution. यानी सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन है जो उस सॉल्यूशन में, यानी जो हमने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है उसमें उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी. यानी यू कैन से दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बिग और ग्रेटर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन. इसी के अब हम सॉल्यूट की बात कर लेते हैं. तो सॉल्यूट क्या होता है? दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन small quantity. Small quantity in the solution. इन द सॉल्यूशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट जो अदर सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर लेता है और दूसरे वो कंपोनेंट होते हैं जो उस बिग क्वांटिटी या बिग अमाउंट में जो हमने कंपोनेंट लिया है उसमें वो वेल मिक्स हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि हर एक सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्वेंट, दूसरा होगा सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट आपका एक ही होगा. हाँ, आप ये कह सकते हो कि सॉल्यूट जो कहते हैं पोर्शन होगा, इट मे बी मोर देन वन. सपोज दैट ये आपका सॉल्वेंट की बात करें, जैसे हमने अभी एक डायग्राम बनाया था कि हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में वी टेक अ बीकर और उस बीकर में हमने क्या किया? वाटर. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. उस बीकर में हमने क्या किया? पानी ले लिया, वाटर लिया. अब इसमें हम क्या करते हैं? शुगर और सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं यानी नमक, उसको ही मिला दिया इसमें. तो अब हम क्या करते हैं, जब इसको वेल मिक्स करेंगे तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं या जो सब्सटेंस हैं वो तीनों मिलकर के होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे. लेकिन इसमें आप शुगर पार्टिकल्स और जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा ये हमारा क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर. तो इन अ सॉल्यूशन ओनली solvent is present in only one component and solute may be more than one substances. Next, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सॉल्यूशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम सॉलिड और लिक्विड को एक साथ लेकर के मिक्सचर बनाते हैं
या सॉल्यूशन बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें हमेशा लिक्विड को क्या किया जाएगा, एज अ सॉल्वेंट कंसीडर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट को हमें लिक्विड लेना है और जो हमारा सॉलिड है उसको एज अ सॉल्यूट लेना है। तो सेवेंथ इज इन अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड है उस लिक्विड को हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे और जो सॉलिड है उस सॉलिड को एज अ सॉल्यूट लेंगे। इसका मतलब है कि लिक्विड की क्वांटिटी को हम ज़्यादा रखेंगे और सॉलिड की क्वांटिटी को हम कम रखेंगे, तब ये हमारा जो है सॉल्यूशन बनेगा। यानी जितने भी हमारे लिक्विड और सॉलिड से रिलेटेड सॉल्यूशन होंगे उसमें हमेशा हम लिक्विड को ही सॉल्वेंट लेंगे और सॉलिड को सॉल्यूट लेंगे। तो हमारे जो भी कैरिकुलम है या जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हम लोग जो भी सॉल्यूशन स्टडी करेंगे वह सॉल्यूशन हम सॉलिड लिक्विड ही लेंगे। इसी के बेस पर हम इसके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग स्टडी करेंगे, चाहे वो वेपर प्रेशर हो या आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सब हम इसी पे, यानी हम लोग अपने इस कोर्स में कहते हैं सॉल्यूशन में आप केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें हमारा सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। अ बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट टू क्रिएट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यू कैन से in binary solution only two components or substances are present और हम लोगों को सिर्फ इसी बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है अपने स्टैंडर्ड में। हमारे कोर्स में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात की गई है। अच्छा, जो लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है वह क्या है कि हम सॉल्यूशन में से जो भी हमने सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वी कांट सेपरेट all the substances in the solution of the solution
बाई एनी फिजिकल मेथड, यानी किसी भी फिजिकल मेथड से उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे आप स्टेनर ले लीजिए या कोई भी क्लॉथ ले लीजिए। जैसे सपोज दैट आपने वाटर में शुगर को मिक्स करके कोई सिरप बना लिया और उसमें से आप चाहते हो को इसको स्टेनर की सहायता से या कोई भी कपड़े की सहायता से आप उसको अलग कर लो। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है या जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें जो भी आपने सब्सटेंसेस मिलाया हुआ है उन सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग यह समझेंगे कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के यानी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अगर हम इसको मोटा मोटा समझें अपने तरफ से, तो जो सॉल्यूशन होते हैं वह सॉल्यूशन हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कंपोजिशन के बेस पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। वी नो दैट देयर आर द 3 स्टेट्स प्रेजेंट इन आवर सर्कमस्टांसेस और इन आवर सराउंडिंग्स। तो इन्हीं तीनों स्टेट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स अप करके हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझते हैं। सपोज दैट वी हैव अ टेबल, हमने क्या किया, इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। तीन कॉलम में डिवाइड कर दिया। हम क्या करते हैं, यहां पर हमने स्टेट या ये कह दें कि इसको हम स्टेट के स्थान पे यहां पर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन डाल देते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, अभी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वह 2 कंपोनेंट से बनता है। तो उसमें एक होता है सॉल्वेंट, तो हमने यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लिया और दूसरा कंपोनेंट ले लिया सॉल्यूट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट द 3 states of the substance, first is solid, second is liquid and third is gas। अब जो हमारा सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं कि इनको 1 by 1 सॉल्वेंट को हम लेते चलते हैं और उसमें जो हमारा सॉल्यूट कंपोनेंट है या सॉल्यूट के फॉर्म में सब्सटेंस है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो बार बार उसको चेंज करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, बेसिकली द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर ओनली 3 टाइप्स।
दैट इज सॉल्यूट सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैस सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। इसको हम 3 टाइप्स क्यों कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ the solution, if the solvent is present, in which state the type of solution formed is that type. It means अगर हमने solvent के रूप में केवल solid लिया है, suppose that solid, अब हमारा जो solute होगा वो solid हो सकता है। हमने फिर solvent के रूप में केवल solid लिया और अब हमने सॉल्यूट के रूप में क्या कर दिया? लिक्विड ले लिया। और अगेन इन अदर कंटेनर वी टेक द सॉलिड एज अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट इज चेंज एज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इट मीन्स कि जो हमारा अब सोल्यूशन बनेगा वह होगा सॉलिड सोल्यूशन। ऐसे आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सॉल्यूट सोल्यूशन में भी 3 टाइप्स। इट मीन्स फर्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन, सेकेंड इज सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड गैस सोल्यूशन। यानी 3 प्रकार के आप सोल्यूशन ले रहे हो, लेकिन हमारा जो मेनली सॉल्वेंट जिस फॉर्म में होगा सॉल्यूशन उसी टाइप का बनेगा। तो सॉलिड अगर हम इसकी बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे ये सॉल्यूशन बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग डेली लाइफ में इन सॉल्यूशंस का यूज भी करते हैं, बट we can't identify which type of solution this is formed. So with the help of this topic we can identify, we can observe the type of solution which is used by us in our daily life. तो अब इसको हम समझते हैं। अगर हमने सॉलिड हमने क्या किया? सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लिया और सॉल्यूट के रूप में सॉलिड लिया, तो इस प्रकार का जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो हमारा, उसका एग्जांपल क्या है? इस तरह के सॉल्यूशन हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? एनी गेसेस? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम सॉलिड को मिलाते हैं तो सपोज दैट हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स ले लिए, डिफरेंट टाइप्स के जो है ग्रेन्स ले लिए, उनको मिला देते हैं, तो क्या वो सॉल्यूशन नहीं है? वो तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि उसके बारे में वो क्या है, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के फेज क्रिएट होते हैं और सॉल्यूशन में सिंगल फेज होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? दैट इज व्हाट इज द सॉलिड सॉल्यूशन? दैट इज मिक्स या मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जितने भी डिफरेंट के मेटल्स होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। यानी सॉल्वेंट के रूप में हमने सॉलिड लिया और सॉल्यूट के रूप में भी हमने सॉलिड लिया। लाइक ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया और आपका ब्रॉन्ज हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमने सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लिया है और सॉल्यूट के रूप में भी सॉलिड लिया है। नेक्स्ट है कि हमने सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड लिया और लिक्विड को हमने सॉल्यूट बना दिया। इसके लिए अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम अमलगम बनाते हैं, अमलगम क्रिएट करते हैं, जो कि सोडियम और
जो सोडियम मेटल होता है, उस सोडियम मेटल में अगर हमने मरकरी को मिक्स कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम हमारा क्या है, सॉलिड है, और मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। बिकॉज वी नो दैट द मरकरी इज ओनली वन मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म इन नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमने क्या किया, यही मरकरी केवल एक ऐसा मेटल होता है जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो अब हमने क्या किया, सोडियम और मरकरी को मिक्स किया, तो हमको क्या मिला, इनका एक अमलगम मिला, अमलगम मिला। ये अमलगम हमारा जो होता है यह भी एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें सॉलिड एज अ सॉल्वेंट और लिक्विड यानी जो हमारा मरकरी हो उसको लिया गया है एज अ सॉलिड। नेक्स्ट, सॉलिड एंड गैस। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन बनता है सॉलिड सॉल्यूशन में ही, इसमें हमने सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट लेना है और सॉल्यूट के रूप में हमने गैस ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने जो भी मिनरल्स हमको मिलते हैं, जितने भी अर्थ के अंडर जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स में हमको क्या मिला हुआ मिलता है, उन मिनरल्स में जितने भी होते हैं, जैसे अगर हम पैलेडियम मेटल ले लें, उस पैलेडियम मेटल में हाइड्रोजन मिक्स होता है। तो पैलेडियम क्या है, मेटल है विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, बट जो हमारा गैस यानी जो उस पे गैस की लेयर चढ़ी होती है वो हमारा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पैलेडियम, यू कैन से द लेयर ऑफ हाइड्रोजन, लेयर ऑफ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम मेटल। तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो पैलेडियम है और जो सॉल्यूट है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से हमारा ये 3 टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो गया। और अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन हमारा बेसिकली ये सॉलिड सॉल्यूशन ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट सब्सटेंस इज टेकन एज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, 3 कंटेनर लेते हैं और तीनों कंटेनर में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड को रख लेते हैं। तो इट मीन्स लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। अब हमने क्या किया, तीनों कंटेनर में लिक्विड ले लिया एज अ सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट फॉर्म में सॉल्यूट को रखते चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वह सॉल्यूशन किस प्रकार का बनता है, जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या डिफरेंट कहते हैं पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, लिक्विड में हमने क्या रखा, सॉल्यूट के रूप में पहले सॉलिड मिला दिया। सिंपल सा एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ा, लिक्विड में सॉलिड को हमने डिसॉल्व कर दिया। द सिंपल एग्जांपल इज द शुगर सिरप। शुगर सिरप हमने क्या किया, वाटर में शुगर पार्टिकल्स को वेल मिक्स कर दिया और हमारा ये बन गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। यानी अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है, यानी आप यहां पे लिख सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन, वो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी स्टडी किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। अगर इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअली लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स।
लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड गैस। अब हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लिया और अब सॉल्यूट के रूप में क्या लेंगे। वी टेक द सॉल्यूट एज इन लिक्विड। लिक्विड सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज दैट हम क्या करते हैं, वाटर में लेमन जूस को यूज करते हैं फॉर आवर हेल्थ। तो यू कैन से या ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे सिरप्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जैसे हम वाटर में हमने क्या क्या कर दिया, अल्कोहल यूज कर दिया। अल्कोहल, वाटर में हमने अल्कोहल यूज कर दिया तो ये क्या हो गया, लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन हो गया। हमने सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया और उसमें अल्कोहल मिक्स कर दिया तो वो हो गया हमारा लिक्विड सोल्यूशन का लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट है लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना, यानी अब हम सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लेंगे और सॉल्यूट में गैस को यूज करेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल है गैस। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, अंडर वाटर जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्किन की हेल्प से ऑक्सीजन को एज अ ब्रीदिंग कंपोनेंट यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर। तो यू कैन से in case of liquid gas solution the oxygen is dissolved in water. Oxygen is dissolved in water। यानी जो भी हमारा ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस हो गया विच इज सॉल्यूट, और वाटर जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया यानी लिक्विड फॉर्म में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन, अब गैस सोल्यूशन में क्या करना है हमें, तो जो हमारा गैसियस सोल्यूशन बनेगा इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के रूप में गैस लेंगे। तो इट मींस हमने 3 टाइप्स के सोल्यूशन क्रिएट करने हैं और अब क्या करना है आपको, तीनों कंटेनर में सॉल्वेंट के रूप में गैस ले लेना है। गैस, गैस एंड गैस। इसका मतलब है कि अब हमारा जो गैसियस सोल्यूशन बनेगा इसमें सॉल्वेंट गैस रखेंगे, यानी वी टेक द गैसियस सब्सटेंस एज अ सॉल्वेंट एंड वी ऐड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सबस्टेंसेज एज अ सॉल्यूट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, गैस में पहले सॉलिड को मिक्स कर लेते हैं, सॉलिड। अब इस फॉर्म में हमारे पास ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो गैस सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, जैसे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और आयोडीन का मिक्सचर क्रिएट करते हैं। तो कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस, आयोडीन वेपर्स इन एयर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में या जो एयर हम यूज करते हैं, इस एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसें डिसॉल्व्ड हैं। तो इन गैसों में डिफरेंट
प्रॉपर्टीज की गैसें हैं, चाहे वो हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वेपर फॉर्म में होता है, नाइट्रेट भी वेपर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस ये गैसीय सॉल्यूशन है। बट इसमें ऐसा कौन सा हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट के रूप में गैस हो और सॉल्यूट के रूप में सॉलिड हो? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज आयोडीन वेपर्स इन एयर। तो आयोडीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर एज अ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और एयर तो हमारा गैस है ही है। तो आयोडीन इन एयर, इसका मतलब है गैस यानी एयर हमारा एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और आयोडीन जो एक प्रकार से आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यानी पार्टिकल्स के रूप में एयर में पूरी तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हैं? सॉल्यूट हो गए। अब गैस और लिक्विड की बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच गैस इज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट एंड लिक्विड इज कंसीडर्ड एज सॉल्यूट। अब इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि जिसमें गैस में लिक्विड हो, जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3। जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन के साथ मिक्स होता है। यानी अगर हम नाइट्रोजन गैस के साथ क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस एज अ सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और जो क्लोरोफॉर्म है दैट इज ट्राइक्लोरोमेथेन, ये एज अ लिक्विड सॉल्यूट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। एंड लास्ट इज गैस। अब हम क्या करते हैं, अब ऐसा गैस सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों फॉर्म में हमारा गैस हो। सिंपल सा एग्जांपल है एयर, यानी जो हम एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, इसमें आप जानते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो दैट इज गैसियस फॉर्म, एंड साइमल्टेनियसली यू एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, यानी यू कैन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये दोनों गैस फॉर्म में होंगे। तो हमारा एयर में डिफरेंट जितने भी गैसेस हैं वो सब इस एयर में मिक्स हैं। तो एयर दैट इज solvent and different types are gases present in this air considered as the solute. So this is the type of solutions which can differentiate with the help of solvent and solute. तो जो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 9 सॉल्यूशन बनते हैं। देयर आर 9 सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर, बट देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन which is considered as the solvent state. अगर सॉल्वेंट स्टेट में जो भी या सॉल्वेंट फॉर्म में जो भी हमारा स्टेट का सब्सटेंस होगा या सॉल्वेंट में जिस स्टेट के सॉल्वेंट को हम सब्सटेंस को यूज करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमने सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड यूज किया है तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर वी टेक द liquid as solvent, then it is known as liquid solution. Whenever we take the gas
form as a solvent, then this is known as gaseous solution. Next, तो हम लोगों ने देखा है डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्रिएट होता है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और सॉल्यूशन को कितने टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का टॉपिक। आज हम इस सॉल्यूशन के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी सॉल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उसको और अच्छे समझेंगे, किस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन जो है किस किस फॉर्म में या उसको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन हो गया या मल्टी सॉल्यूट सॉल्यूशन हो गया या डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, और उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।